Hello students, welcome to MDA math classes. In this video, we will discuss and solve important previous year's board MCQ questions, that is multiple choice questions of chapter Maths class 10 plus 2 mathematics. First question. If A and B are symmetric matrices of the same order, then AB minus BA. We have given the four options. First option is symmetric matrices, skew symmetric matrices, null matrices, and last is unit matrices. Now, if A and B are symmetric matrices, it means transpose of A equal to A and transpose of B equal to B. Then AB minus BA transpose equal to AB transpose minus BA transpose. This is equal to B transpose A transpose minus A transpose B transpose. We can write, because here A transpose equal to A, so we can write BA minus AB. Taking minus is common, then AB minus BA. So AB minus BA is a skew symmetric matrix. अब आपने इसको याद रखना है. If A and B are symmetric matrices of the same order, then AB minus BA क्या हुआ हमारे पास? वे skew symmetric matrices. Which option is correct? Option B is correct. The number of all possible matrices of order 3 into 3 with each numbers 0 or 3 is. We have again given four options. Solution of this question. A matrix of order 3 into 3 has 9 elements. You know the general matrix of order 3 into 3. It means 3 rows and 3 columns. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Right? It means it has 3 into 3 elements. The number of choices for each element, we have given 0 and 3, that is 2 ways. Total possible arrangement of the matrices, that is 2 into 2 into 2, 2 into 2 up to 9 times by fundamental principle of counting. So we can write down here 2 power 9. 2 power 9 is 512. Which option is correct, bete? Option C is correct. That is answer is 512. With this very important questions. Question number 3. If A and B are two invertible matrices, then the inverse of AB is equal to. You know the inverse of AB is equal to B inverse A inverse. Which option is correct, bete? Option D is correct. If A equal to 1, 2, 3 matrices, then A transpose equal to this. Again we have given four options. We have given A equal to 1, 2, 3. A transpose means we will take 1, 2, 3, the transpose of this. So rows will change into column. So it will become 1, 2, 3. Now A into A transpose equal to 1, 2, 3, that is 1, इसको कॉलम में ले लिया 1, 2, 3. सो 1, 2, 3. बच्चे इधर क्या है? रोज हमारे पास क्या है? 1. ये हमारे पास क्या है? 1. कॉलम कितने हैं? 3. सो वी कैन राइट 1 into 3. इसमें मेरे पास क्या है? देखो रोज कितनी होगी? रोज मेरे पास होगी 3. कॉलम कौन सा हो गया? 1. आई कैन राइट 3 into 1. राइट? देखो मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है? देखो जब मेरे पास इसका मतलब 1 into 3, 3 into 1. Number of column of the first matrix should be equal to number of the rows of the second matrix, right? So this will become 1 into 1 matrix. So I can write 1 into 1 plus 2 into 2 plus 3 into 3. 1 plus 4 plus 9, this is equal to 14. The correct option is, this answer is matrix. का आंसर क्या आ गया? 14. If A is a matrices of order 4 into 3, then each row of the matrices A contains a element. Again we have given a 4 option. बच्चे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जब मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 into 3, इट मीन्स रोज कितनी चाहिए? 4. कॉलम कितने चाहिए मेरे पास? 3. इसको मैं लिख सकती हूँ A11, A12, A13. इट मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. A22, A23, A31, A32, A33, A41, A42, A43.
ईच रो कंटेन्स कितने एलिमेंट हर एक रो में 3 एलिमेंट. ईच रो कंटेन्स 3 एलिमेंट्स. विच ऑप्शन इज करेक्ट बेटे? ऑप्शन सी इज करेक्ट. Next question. Matrices x plus y 1 2y 5. This is equal to matrices 7 1 4 5. Then x is equal to, again we have given a 4 option, right bete? From the solution of this question, I will write x plus y 1 2y 5 matrices equal to 7 1 4 y. From the definition of equality of matrices, you know x plus y equal to 7, 2y equal to 4. I will write here 2y equal to 4. It means y equal to 4 by 2. This will go by this. Y equal to 2. Now I will put the value of y in x plus y equal to 7. So put y equal to 2. X plus 2 equal to 7. X equal to 7 minus 2, that is equal to 5. Which option is correct? Option C is correct. But the value of x is 5. No, the next question. If AB equal to C, where B and C are matrices of the order 3 into 5, then the order of A is. We have again given 4 options. Now solution of this question. Given AB equal to C, right? Where B and C are the matrices of order 3 into 5. B का कितना ऑर्डर है बेटे? 3 into 5. C का कितना ऑर्डर है? 3 into 5. अभी मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है. जो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम शुड बी इक्वल टू द रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स. देखो इधर मेरे पास इसकी रोज कितनी है? 3. इसका मतलब इसका कॉलम भी इसके फर्स्ट मैट्रिक्स का कितना होएगा? 3. ये मेरे पास क्या बन जाएगा? 3 into 3, 3 into 5. राइट, दिस इज C इज गिवन 3 into 5. अब देखो इट में नंबर ऑफ दैट, दिस इज रोज एंड दिस इज कॉलम. ये मेरे पास क्या होते हैं बेटे? रो. ये मेरे पास क्या होते हैं? कॉलम. राइट, ये मेरे पास क्या होता है? रो. ये मेरे पास होता है कॉलम. इट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ द रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स. या मेरे पास दोनों 3 into 3 आ गए. इट मीन्स देखो क्या हो गया? 3 into 5, दिस इज इक्वल टू 3 into 5. ये मेरे पास चाहिए था. सो द विच ऑप्शन इज करेक्ट? इसका कितना ऑर्डर हुआ? ए का 3 into 3. विच ऑप्शन इज करेक्ट? दैट इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3 into 3. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. If A plus B equal to C, where A and B are the matrices of order 2 into 3, then the order of C is. Right, बच्चे? Again we have given a 4 option. No, solution of this question. We have given A plus B equal to C, right? A and B are the matrices of the order कितना? 2 into 3. 2 into 3. देखो इधर कौन सा साइन है? प्लस का. एडिशन कब पॉसिबल होएगी? जब इन दोनों का ऑर्डर सेम होएगा. इसलिए यदि A प्लस बी का ऑर्डर 2 into 3 है तो C का भी ऑर्डर बेटे कितना आ जाएगा मेरे पास? 2 into 3. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज 2 into 3. Now next question. If A is a order of 5 into 2 and B is a matrices of order 2 into 5, then the order of the matrix B A transpose is equal. Again we have given a 4 option. A is a matrix of order कितना दिया बेटे हमें? 5 into 2. B का कितना ऑर्डर दिया? 2 into 5. Therefore B A दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने लगी. 2 into 5, 5 into 2. अभी मैंने बताया तो कितना हमारे पास इसका ऑर्डर हो जाएगा? 2 into 2. क्योंकि देखो नंबर ऑफ इसके कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रोज. मेरे पास क्या आ गया? 2 into 2. अब मैंने क्या लेना है? इसका ट्रांसपोज. बी ए ट्रांसपोज पूछा. सो 2 into 2 का जब मैंने ट्रांसपोज लिया वो भी क्या सेम ही रह जाएगा? 2 into 2. ट्रांसपोज का मतलब क्या है? चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज. कितना आंसर रह गया मेरे पास? 2 into 2. विच ऑप्शन इज करेक्ट बेटे? ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज 2 into 2. If order of matrix A is 2 into 3 and order of matrix B is 3 into 5, then the order of matrix B transpose A transpose. Again I have given a 4 option.
देखो बच्चे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 × 3। अब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज मैंने अभी आपको बताया, जब किसी का भी हम ट्रांसपोज लेते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 × 3 ट्रांसपोज। इसका मतलब जो चेंज है रोज इंटू कॉलम, कॉलम इंटू रोज, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 3 × 2। कितना हो गया, 3 × 2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 3 × 5। ट्रांसपोज ऑफ बी क्या हो जाएगा बेटे, 5 × 3। सो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आ गया मेरे को, बी का कितना ट्रांसपोज 5 × 3, ए ट्रांसपोज कितना 3 × 2। फिर मेरे को देखो दोनों इक्वल हो गए। इट मीन इसका कितना आंसर आ गया, कितना ऑर्डर आ गया, 5 × 2। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। If the matrix A is both symmetric and skew symmetric, then A is diagonal matrix, zero matrix, square matrix, none of these. बच्चे इसका आंसर कितना होएगा, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक है देन इट इज़ अ जीरो मैट्रिक्स। कैसे है, ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जब ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए। स्क्यू सिमेट्रिक कब होएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू माइनस ए। फ्रॉम आई हैव गिवन दिस इज नंबर 1, नंबर 2 एंड ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इट मीन्स ए इक्वल टू माइनस ए plus a equal to 0, 2a equal to 0, a equal to 0. So a is a zero matrix. This question is also important. Which option is true? That is option B is true. If a is a square matrix such that a square equal to a, then 1 plus a cube minus 7a is equal to. Again we have given 4 options. देखो बच्चों क्या दिया हमारे पास, a square equal to a. This is given. ए क्यूब को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर इंटू ए। अभी क्या दिया था मेरे पास, ए स्क्वायर इक्वल टू ए। मैंने ए स्क्वायर की जगह के क्या लिख दिया, ए इंटू ए। दिस इज अगेन इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर किसके इक्वल है बेटे, ए के। क्लियर हो गया। 1 प्लस आगे आ गया आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7 है, जो मेरे को दिया आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7 है। दिस इज इक्वल टू, हम सबको पता बच्चे, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, दिस इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, यही फार्मूला मैंने इधर लगा लिया, आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3ia इंटू आई प्लस ए, ब्रैकेट इज क्लोज, आगे क्या दिया -7 है, मैंने लिख लिया। सो दिस इज आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3i स्क्वायर इंटू ए प्लस 3ia स्क्वायर माइनस 7 है। आई क्यूब मीन बटे आई, ए क्यूब दिस इज ए क्यूब प्लस 3i स्क्वायर ए। सो 3i स्क्वायर ए मीन्स दिस इज 3 है, 3ia स्क्वायर दिस इज 3a स्क्वायर माइनस 7 है, राइट। अब मेरे पास हो गया आई, ए क्यूब मीन्स ए प्लस 3a, ए स्क्वायर क्या दिया था ए, तो मेरे पास ये क्या आ गया प्लस 3a माइनस 7 है। आई प्लस देखो 3 प्लस 3 6 प्लस ए 7 है, आई प्लस 7a माइनस 7 है, 7a से 7a कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू आई। विच ऑप्शन इज करेक्ट बेटे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन है सीबीएसई में इस साल 2021 में आया है। इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2 × 3 और and matrix B is 3 × 2 and matrix C is 3 × 3 ऑर्डर दिया है, then which of the following is not defined? हमें अगेन वी हैव गिवन है 4 ऑप्शंस। देखो बच्चे, जो हमें दिया आपने लिख लिया, A किसके इक्वल है 2 × 3 ऑर्डर, B किसका है 3 × 2, राइट। अब देखो मेरे को इधर C का ऑर्डर क्या है, चलो हम लिख लेते हैं, C का ऑर्डर क्या दिया हुआ है इन्होंने 3 × 3। मेरे पास क्या चाहिए, सी इंटू, सबसे पहले मैंने ऑप्शन ये उठाई सी इंटू ए प्लस बी ट्रांसपोज। इट मीन मेरे को वहाँ पर ट्रांसपोज चाहिए, मैंने लिख लिया बी ट्रांसपोज। 3 × 2 का क्या हो जाएगा 2 × 3। अभी मैंने आपको बताया रोज चेंज इंटू कॉलम, कॉलम चेंज इंटू रोज। सो ए प्लस बी ट्रांसपोज, ए प्लस बी, ए का भी कितना ऑर्डर है 2 × 3, बी ट्रांसपोज का कितना 2 × 3, इसके दोनों का सम कितना, दोनों का ऑर्डर कितना हो गया 2 × 3। बेटे देखो एडिशन तभी पॉसिबल होती है जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है। नो सी इंटू ए प्लस बी ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू, सी की जगह मैंने ऑर्डर ले लिया 3 × 3 ब्रैकेट स्टार्ट 2 × 3, राइट। अभी मैंने आपको एडिशन में क्या बताया था, नंबर ऑफ
column of the first matrix should be equal to the number of the rows of second matrix. देखो ये दोनों सेम नहीं हुए. देखो इट मीन्स क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज. सो द विच इज कहते हैं हमें था which of the following is not defined. It means this is not defined C into A plus B transpose. Which option is correct बेटे? Option A is correct. ये भी CBSE में 2021 में आया क्वेश्चन. If A equal to matrix 4 2 minus 1 1, then A minus 2i into A minus 3i is equal to. हमें फिर 4 ऑप्शंस दी. वेरी सिंपल क्वेश्चन. देखो A का क्या दिया हमें, 4 2 minus 1 1 मैट्रिक्स, राइट बेटे. तो माइनस 2 इंटू आई का मतलब 1 0 0 1, यानी कि इसका ऑर्डर 2 हुआ. इसको मैंने कर लिया 4 2 minus 1 1, 2 से मल्टीप्लीकेशन 2 0 0 2. अब मैंने क्या करना है, माइनस. देखो दोनों का ऑर्डर कितना, इसका भी ऑर्डर सेम है 2 इंटू 2, इसका भी मेरे पास 2 इंटू 2. ये हो गया 4 minus 2, राइट. 2 minus 0 minus 1 minus 0 1 minus 2. This is equal to 4 minus 2 is 2, 2 minus 0 is 2, minus 1 minus 0 is minus 1, 1 minus 2 is that is minus 1. इसे ऐसे मैंने क्या फाइंड कर लूँगी, a minus 3i. a minus 3i, फिर अगेन 4 2 minus 1 1 मैट्रिक्स माइनस 3 i को मल्टीप्लिकेशन किया 3 0 0 3. a बन गया 4 minus 3, 2 minus 0 minus 1 minus 0 1 minus 3, राइट बेटे. 4 minus 3 is 1, 2 minus 0 is 2, minus 1 minus 0 is minus 1, 1 minus 3 is minus 2. Now a minus 2i into a minus 3i is equal to, I have to find. मैंने अब इसको लिख लिया a minus 2i into a minus 3i. अब a minus 2i मैट्रिक्स किसके इक्वल था, 2 2 minus 1 minus 1. a minus 3i किसके इक्वल था, 1 2 minus 1 minus 2. देखो दोनों का ऑर्डर सेम है ना, राइट. अब हमने इनके मल्टीप्लिकेशन करनी है. तो मल्टीप्लिकेशन अब किसकी कैसे है, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मेरे पास हो गया 2 इंटू 2 माइनस 2, दैट इज़ 2 आ गया कितना, 2 2 ज़ा 4, और मेरे पास हो गया माइनस 4. अब मैं क्या लूँगी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 क्या बन गया बच्चे, प्लस 1, राइट. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस 1 इंटू मेरे पास ये कितना हो गया, माइनस 1 इंटू 2 डेट इज़ माइनस 2, माइनस 1 इंटू माइनस 2 कितना हो गया बेटे, प्लस 2. ये हो गया 0 0 0 0. विच ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट. ये भी CBSE में 2021 में क्वेश्चन आया. क्वेश्चन नंबर 15. If P is 3 into 3 matrices such that transpose of P is equal to 2P plus I, where P transpose is where P dash is a transpose of P, then again we have given 4 options. बच्चे क्या दिया हमें, देखो P transpose equal to 2P plus I. हमें क्या दिया है, P transpose equal to P. मैंने क्या किया, P ट्रांसपोज की जगह के इसकी वैल्यू भरती, P इक्वल टू 2P प्लस 1. ये मेरे पास आ गया P माइनस 2P इक्वल टू I, माइनस P इक्वल टू I, P इक्वल टू माइनस I. विच ऑप्शन इज करेक्ट बेटे, ऑप्शन बी इज करेक्ट. अब क्वेश्चन नंबर मेरे पास आ रहा है बेटे 16. कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 16. cos alpha minus sin alpha. If A equal to cos alpha minus sin alpha into cos alpha, then A plus A transpose equal to I. Find the value of alpha. Right? Here we have given A equal to this also. क्या हमारे पास given A plus A transpose equal to I. वैल्यू पुट कर दो बच्चे A की मैट्रिक्स की, cos alpha minus sin alpha into cos alpha प्लस cos alpha minus sin alpha into cos alpha. इसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया. देखो इधर मैंने I2 क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर कितना है मेरे पास, 2 इंटू 2, राइट. देखो cos alpha minus sin alpha cos alpha. जब ट्रांसपोज लिया रो किस में चेंज हो गई, कॉलम में. सो cos alpha minus sin alpha कॉलम में आ गया, cos alpha minus sin alpha जो sin alpha into cos alpha ये रो कॉलम में चेंज हो गई. दिस इज इक्वल टू, आई कैन राइट 1 0 0 1. अब देखो एक एडिशन, cos alpha plus cos alpha minus sin alpha plus sin alpha.
sin alpha minus sin alpha cos alpha plus cos alpha. This is equal to मैट्रिक्स 1 0 0 1. देखो 2 cos alpha ये 0, दिस इज 0, 2 cos alpha इक्वल टू कितना आ गया 1 0 0 1 मैट्रिक्स. इक्वेटिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मेरे पास हो गया 2 cos alpha इक्वल टू 1, cos alpha इक्वल टू 1/2. देयरफॉर cos alpha 1/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस इज cos π/3. किसकी वैल्यू है cos π/3. सो अल्फा का आंसर कितना आ गया, अल्फा इज इक्वल टू π/3. विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट. If a equal to alpha beta gamma minus alpha such that a square equal to I, then again we have given 4 options. Given a equal to this, a square equal to identity I, a square को मैं लिख सकती हूँ a into a, that is इसका ऑर्डर कितना बेटे, देखो 2 I2. मैंने जो a की वैल्यू कितना मैट्रिक्स अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा लिख लिया. अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, दिस इज इक्वल टू 1 0 0 1. अब मैंने मल्टीप्लिकेशन की, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. देखो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. ये मेरे पास क्या हो गया, बीटा इंटू गामा, डेट इज़ बीटा गामा. फिर हमारे पास हो गया अल्फ़ा बीटा, डेट इज़ माइनस बीटा अल्फ़ा. ये मेरे पास क्या है बेटे, बीटा. तो जब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, मेरे पास ये आ गया, दिस इज इक्वल टू दिस. सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये 0 हो गया, ये भी क्या हो गया 0. बीटा गामा प्लस अल्फ़ा को मैं लिख सकती हूँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, लिख लिया. दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 0 0 1. इक्वेटिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1. मेरे पास आंसर क्या हो गया, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0. विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट. If A equal to Aij m into n matrices is a square matrix. If m is हमारे पास क्या लेस देन n, सेकेंड ऑप्शन m is greater than n, C m equal to n, D is none of these. बच्चे if A equal to Aij m into n matrices is a square matrix कब पॉसिबल होएगा, when m equal to n. It means number of rows equal to number of column. By definition of a square matrix, that is m equal to n. m equal to n का आपको मीनिंग पता चल गया. Number of rows equal to number of column. Which option is correct? Option C is correct. देखो बच्चे ये सारे मैंने आपको बोर्ड के क्वेश्चन कराए हैं. अब आपका एग्ज़ाम आ रहा है, बहुत अच्छी तरह से इनको कर लेना. रिवीजन में आपके ये सारे क्वेश्चन बहुत काम आएंगे. देखो, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब it, comment it and share it. Thank you so much.